Good morning, all of you. I am Meenakshi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel. So, in this video, I have taken chapter first from class 4th. The name of chapter is The Key to the Garden. This is part first. There are two parts in this chapter, so I will make one more video for part 2. So, let's start. Little Mary is sent to her uncle's house after her parents' death. It is a very old and large house. Let us see how Mary spends her time in her new home. So ये जो story है, there is a girl, little girl, whose name is Mary. And after her parents' death, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, सो सी वॉज सेंट टू हर अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर उसको भेजा गया. एंड द हाउस वेयर सी इज लिविंग दैट इज अ वेरी ओल्ड एंड लार्ज हाउस, एक बड़ा सा घर था ये. सो इन दिस स्टोरी वी विल सी हाउ मैरी स्पेंड्स हर टाइम इन हर न्यू होम. Mary went out into the main garden and ran around the fountain. The sunshine made the whole place look different. So Mary main garden में गई and she ran around the fountain. Fountain means there was a fountain, फव्वारा. वो वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमी and the sunshine made the whole place look different. Because of sunshine, everything was looking bright and beautiful. So the place was looking different. She kept lifting her face and looking up into the bright blue sky, trying to imagine what it would be like to lie down on one of the little snow white clouds and float about. So as mostly the children do, she kept lifting her face. उसने अपना फेस ऊपर आसमान की तरफ किया and she was looking up into the bright blue sky. और आसमान को देख रही थी वो and she trying to imagine, वो imagine कर रही थी what would be if she could manage herself to lie down on one of the little snow white clouds and she wanted to float here and there into the sky. अब वो सोच रही थी अगर मैं भी किसी एक इस पे क्लाउड पे लेट सकूं और चारों तरफ फ्लोट कर सकूं तो कैसा लगेगा. She went into the next garden and found Ben Weatherstaff working there with two other gardeners. So there were three gardeners in that garden and as she went into the next garden, वो क्या देखती है, there was a man whose name is Ben Weatherstaff. And Ben Weatherstaff was working there with two other gardeners. वो दो और gardeners means माली who take cares of the plants. So Ben Weatherstaff को देखती है काम करते हुए दो और gardeners के साथ. Springtime is coming, he said. Can you smell it? So he means here Ben Weatherstaff. He is saying springtime is coming. Springtime is a season when flowers start blooming. मीन्स स्प्रिंग टाइम मीन्स बसंत ऋतु, जब चारों तरफ पेड़ों पर नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और पौधों पर फूल महकने लगते हैं, दैट इज स्प्रिंग टाइम. सो हेयर बैन वेदर स्टफ सेड कैन यू स्मेल इट, क्या तुम इसकी स्मेल बता सकते हो, क्या है ये. मैरी स्निफ्ड एंड थॉट शी कुड. आई स्मेल समथिंग नाइस एंड फ्रेश एंड डैम्प, शी सेड. सो मैरी स्मेल्ड द थिंग वट एवर बैन वेदर स्टफ वॉज टेकिंग इन हिज हैंड, और उसको स्मेल करके वो बताती है येस आई स्मेल समथिंग नाइस, मुझे कुछ अच्छी सी महक आ रही है. समथिंग इज फ्रेश एंड डैम्प, डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट, कुछ गीला और ताज़ा है इसमें. दैट्स द रिच अर्थ, ही आंसर्ड. डिगिंग अवे मीन्स ही वॉज रिमूविंग द सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड, और ही आंसर्ड बैन वेदरस्टफ उसको रिप्लाई करता है येस दैट्स द रिच अर्थ मीन्स वाट एवर सी स्मेल्ड दैट वॉज अ रिच अर्थ मीन्स सॉइल, स्मेल ऑफ सॉइल, वो मिट्टी की खुशबू थी. इन द फ्लावर गार्डन्स आउट देयर यू विल सी ग्रीन स्पाइक्स स्टिकिंग आउट ऑफ द अर्थ आफ्टर अ बिट. कुछ समय बाद तुम देखोगी देयर विल बी स्पाइक्स कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ. सो स्पाइक्स मीन्स हेयर न्यूली प्लांट्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ, छोटे छोटे से जो प्लांट्स उगने शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, अंकुरित होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइक्स. वाट विल दे बी आस्क्ड मैरी. अब मैरी पूछती है कि ये जो प्लांट्स यहाँ पे उगेंगे ये किस चीज़ के होंगे, क्या हैं ये. क्रोकसेस, स्नोड्रॉप्स एंड डैफोडिल्स.
said Weatherstaff. Weatherstaff उसको रिप्लाई करता है, these plants will be of crocuses, snowdrops and daffodils. So what are these? These are the flowers. Crocuses is the flowers. Its color is purple, white or yellow, and snowdrops is the flowers in white color. Daffodils is a yellow flowers, and these all flowers come or bloom in the early spring season. बसंत ऋतु में खिलने वाले पौधे फ्लावर्स हैं ये. You will have to wait for them. They will slowly poke up, push out and uncurl one leaf after another. You should watch them. So here Ben Weatherstaff asks her if she wants to see these plants coming out of the earth or blooming the flowers on it. So she needs to wait for some time. कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्लांट्स धीरे धीरे बाहर आते हैं, एंड पुश आउट एंड अनकर्ल वन लीफ आफ्टर अनदर, और कैसे इनकी जो लीव्स होती हैं कैसे कैसे धीरे धीरे एक के बाद एक एक करके ग्रो होती हैं. I am going to, answered Mary. So Mary replied, yes, I will wait and I will see how these plants come outside and flowers will bloom. So here, very soon she heard the soft rustling of wings and knew at once that the robin had come. अब उसको एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देता है, दैट वॉज द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ विंग्स, जैसे विंग्स की आपस में रसलिंग साउंड्स, खड़खड़ाने की आवाज़. एंड न्यू एट वंस दैट द रोबिन हैड कम, और उसको फिर पता लग जाता है कि रोबिन आ गया है. सो रोबिन हेयर, रोबिन इज अ बर्ड. ही वॉज वेरी लिवली, बिल्कुल जिंदा दिल था वो. ही होप्ड अबाउट क्लोज टू हर फीट, पुट हिज हेड ऑन वन साइड एंड लुक्ड एट हर स्लाइली. सो स्लाइली मीन्स हेयर नोइंगली. इट मीन्स दे बोथ न्यू ईच अदर, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे. सो दैट्स वाई रोबिन होप्ड आउट. होप मीन्स जम्प्ड, वो जंप करते हुए उसके पास आता है, एंड क्लोज टू हर फीट, और उसके पैरों के पास जंप करना स्टार्ट करता है. बट पुट हिज हेड ऑन वन साइड एंड लुक्ड एट हर स्लाइली, और अपना हेड एक तरफ करते हुए उसकी तरफ नोइंगली देखता रहता है. डू यू थिंक ही रिमेंबर्स मी, सेड शी आस्क्ड बैन वेदरस्टफ. अब वो बैन वेदरस्टफ से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि ही स्टिल रिमेंबर्स मी, यह मुझे जानता है, मुझे याद है ये, मतलब इसको मैं याद हूँ. सो रिमेंबर्स यू, said Weatherstaff. He even knows every cabbage stump in the garden. So Weatherstaff replies to her that not only you, he knew every cabbage stump in the garden. He knew all the plants of that garden. कि सिर्फ तुम्हें ही याद नहीं है ये जो जितने भी यहाँ पे गार्डन में जितने प्लांट्स हैं, कैबेज स्टम्प मीन्स प्लांट्स ऑफ कैबेज, जितने यहाँ गोभी के प्लांट्स हैं यह सबको जानता है. Are plants growing in the dark in that old garden where the robin lives? Mary inquired. अब मैरी उससे पूछती है कि सारे प्लांट्स यहाँ डार्क में जो इतने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं यहाँ ओल्ड गार्डन में, और ये रोबिन भी यहीं रहता है. What old garden? Grunted Weatherstaff. So grunted means here spoke in a roughly manner. Means Weatherstaff got angry listening the words old garden. So he got angry and in a rough manner he spoke. What old garden? What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है old garden से? The one where the old rose trees are. She could not help asking because she really wanted to know, are there ever any roses? अब मैरी जो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी. शी वॉज एक्साइटेड टू नो अबाउट द गार्डन, और उसका मतलब था कि यहाँ पे जो पुराने ओल्ड रोज ट्रीज लगे हुए हैं, दैट्स वाई शी वॉज सेइंग द गार्डन ओल्ड, कि क्या यहाँ पे रोजेज उगते हैं कभी. आस्क हिम, सेड बैन वेदरस्टफ hunching his shoulders towards the robin. So he just indicated the robin bird there and he asked that just ask robin. robin से पूछो इन सब के बारे में. He is the only one who knows. No one else has been inside that garden for 10 years. और इस गार्डन के अंदर कोई भी 10 years से नहीं रहता except Robin.
So you just ask your questions to Robin. 10 years was a long time, Mary thought. She had been born 10 years ago. अब मैरी सोचती है it was a very long time क्योंकि she was born before 10 years. She walked away thinking. अब वो वहाँ से वॉक करने लगती है सोचते हुए. She went to walk outside the long ivy covered wall over which she could see the tree tops. Then she went to walk outside the long. अब वो थोड़ा दूर निकल जाती है वॉक करते हुए. And she saw a ivy covered wall. So ivy covered means here the climbing plants जो होते हैं that covered a wall over there and which she could see the tree tops. और वहाँ से वो क्या देखती थी, वहाँ से उसको वॉल के ऊपर से बड़े बड़े ट्री टॉप्स दिखाई दिए. Who knew the old garden well? That is the question. Suddenly she heard a chirp and a twitter. These are the sounds she heard there. When she looked at the bare flower bed on her left, there the robin was hopping about and pretending to peck things out of the earth. और जब उसने उधर जो बेयर फ्लावर्स की तरफ देखा, सो उसके लेफ्ट साइड में सी सो देयर वॉज रोबिन एंड रोबिन वॉज होपिंग अबाउट एंड प्रिटेंडिंग टू पैक थिंग्स आउट ऑफ द अर्थ. और वो अर्थ में कुछ खोद के कुछ निकालना चाह रहा था वहाँ से. सो यू डू रिमेंबर मी, सी क्राइड आउट. यू डू, यू आर प्रिटियर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. हेयर मैरी अगेन आस्क रोबिन, डू यू डू रिमेंबर मी, क्या मैं तुम्हें याद हूँ. यू डू, क्या सच में. यू आर प्रिटियर देन एनीथिंग एल्स मीन्स यू आर मोस्ट ब्यूटिफुल इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज प्रिटियर देन यू, तुमसे सुंदर कोई नहीं, तुम सबसे सुंदर हो इस संसार में. सी चिप्ड एंड टॉक्ड एंड कोक्स्ड एंड ही होप्ड एंड ट्वीटर्ड. सो हेयर सी चिप्ड, वो उससे पूछती रही एक पोलाइट मैनर में. सो कोक्स्ड मीन्स हेयर शी वॉज आस्किंग द क्वेश्चन इन अ पोलाइट मैनर बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो द आंसर्स. एंड रोबिन होप्ड एंड ट्विटर, और रोबिन जो वहाँ पे फुदकता रहा और ट्विटर मीन्स साउंड निकालता रहा बोलने का. इट वॉज एज इफ ही वर टॉकिंग, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उससे बात कर रहा हो. His red waistcoat was like satin and he puffed his tiny breast out and was so fine, grand and pretty. So रोबिन जो था उसकी हिज रेड वेस्ट कोट, उसकी जो स्किन थी वो इट लुक्स लाइक सैटन. सैटन इज द क्लॉथ and soft cloth, and he puffed his tiny breast out and was so fine, grand and pretty means यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है कि दिस बर्ड लुक्स सो ब्यूटीफुल. द स्किन इज सो सॉफ्ट दैट इट लुक्स लाइक सैटिन एंड इट जस्ट ही पफ्ड हिज टाइनी ब्रेस्ट आउट एंड ही वॉज सो फाइन, ग्रैंड एंड प्रेटी. इट लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल. As the robin hopped about under the tall shrubs, she saw him hop over a small pile of freshly turned up earth. So as the robin hopped, जैसे कि रोबिन फुदकता है, about under the tall shrubs, लंबी लंबी shrubs के अंदर जब वो फुदकता हुआ जाता है, she saw him, तो मैरी उसको देखती है, hop over a small pile of freshly turned up अर्थ, जैसे कि कुछ ताज़ी फ्रेश जो ढेर बना हुआ हो, पाइल बना हुआ हो अर्थ का, सॉइल का, उसके ऊपर उछलते हुए उसको देखती है. एंड ही स्टॉप्ड ऑन इट टू लुक फॉर अ वॉर्म, और रोबिन वहीं पे रुक जाता है. ही वॉज लुकिंग फॉर अ वॉर्म. वॉर्म मीन्स हेयर कीड़ा. वो वॉर्म के सर्च में वहाँ पे कुछ मिट्टी में से खोद रहा था. द अर्थ हैड बीन turned up because a dog had been trying to dig up a mole. और वहाँ जो अर्थ थी वो फ्रेश क्यों लग रही थी, बिकॉज अ डॉग हैड बीन ट्राइंग टू डिग अप अ मोल. वहाँ पे एक जो डॉग था वो भी कुछ वहाँ पे मिट्टी को खोद रहा था. और वो किस लिए खोद रहा था, ही वॉन्टेड टू
he wanted to search a mole there. Mole means a small animal that lives underground. मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कुछ जानवर होता है, उसकी तलाश में उसने डॉग ने उसको मिट्टी को खोद दिया था. He had scratched quite a deep hole, और उसने काफ़ी गहरा सा वहाँ पे गड्ढा बना दिया था. Mary looked at it, not really knowing why the hole was there. और Mary was looking that why here is a hole. यहाँ ये होल क्यों बना हुआ है. As she looked, she saw something almost buried in the newly turned soil. और जैसे कि वो वहाँ पे उसने देखा, सी सो समथिंग ऑलमोस्ट बरीड, वहाँ पे कुछ दबा हुआ था उस मिट्टी में, इन द न्यूली टर्न सॉइल, जो वहाँ मिट्टी खुदी हुई थी उसी के अंदर उसे कुछ दबा हुआ मिला. इट वॉज समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ रस्टी आयरन, और इट वॉज लुकिंग लाइक अ रिंग, वो कुछ रिंग जैसा लग रहा था. एंड वो जो रिंग थी वो रस्टी आयरन, रस्टी मीन्स हेयर, जैसे कि कोई लोहे पे जंग लग जाता है, ऐसे ही कुछ उसको रिंग वहाँ दिखाई दी. When the robin flew up into a tree nearby, she put out her hand and picked the ring up. और जैसे ही रोबिन उड़ के पास के ही पेड़ पर जाता है, she put out her hand and picked up the ring. वो वहाँ से उस रिंग को उठा लेती है. It was more than a ring, however, it was an old key which looked as if it had been buried a long time. और ये जो खाली रिंग ही नहीं थी, रिंग से कुछ ज़्यादा था. इट मीन्स इट वॉज एन ओल्ड की, ये एक पुरानी चाबी थी. विच लुक्ड एज इफ, जो कि लगता है जैसे कि इट हैड बीन बरीड अ लॉन्ग टाइम, जैसे ये काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे दबाई गई हो या दबी हुई हो. वेयर डिड मैरी फाइंड द की, दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स. Where did Mary find the key? मैरी को की कहाँ मिली. Then Mary stood up. मैरी खड़ी हुई and looked at it as it hung from her finger. और अपनी फिंगर पे उसको टांग के उसको जो देखती रही. Perhaps it has been buried for 10 years. शायद यह 10 साल से यहाँ दबी हुई है. She said in a whisper. उसने धीरे से कहा. Perhaps it is the key to the old garden. और शायद यह पुराने गार्डन की है. Adapted from The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett. So this story is the part of The Secret Garden that was written by the writer Frances Hodgson Burnett. There are word meanings, so you have to learn these word meanings. We will see the exercise work of it. Okay, I think this video is getting long, and if you want the question answer and exercise work also, so I will make a separate video for it. Okay, so मिलते हैं next video में, जब तक के लिए bye.